Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. As you can see on the screen, today we are going to do the worksheet number 65, 13 January 2022. English worksheet, bache, you will write your name at the place of name of student. You will write your class teacher name at the place of name of class teacher. Today we are going to do modals. Modals, what is modal? See, here it has expressed that where to use the modals like can, could, will, would. Okay, so can we use for the ability and could we use for the past ability as? In examples, you will see Rita can speak French language means it is Rita's ability that she can speak French. In the second sentence, he could run fast when he was young. When he was young means we are talking about the person when the person was young. Like now the person is 50-year-old, that time that was 15 years old. Okay, so we say like that he could run fast means at that time he could run fast but not now. Okay, so the ability in could was, so जब वो छोटा था at that time he could run fast, तो past ability दिखा रहा है यहाँ पर, so we can use could in the past abilities. Request है, if you want to speak something with request, can I take your pen, can I borrow your book, can you collect the bills please, will you show me the ways to mall please, तो would you like to give me your lunch. इस तरह के जो वर्ड्स है, कुड आई टॉक टू यू, ये सारे वर्ड्स रिक्वेस्ट में आते हैं. जब किसी से हम आस्किंग करते हैं तो वहाँ के लिए कैन, कुड, विल, वुड का यूज होता है. परमिशन, we can, if you want, see there are two kind of permission, one is formal, another is informal. In formal permission we use the word may. In formal permission, suppose you are asking something to your principal, may I come in ma'am. If you are asking something to your friend, Bunny, can I take your pen? So means when you are talking to your friend, asking permission to your friend, then you will use can. If you are talking to your elders, your respected person, then you would use may. May shows the permission on formal cases, can shows the permission in informal cases. Could also be used for the permission like polite, more polite permission we can say. Could you please switch on the light? ओके, ये पोलाइट हो गया ना. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब पोलाइट, मोर पोलाइट होता है तो वी कैन यूज कुड. मे आई बोरो योर वर्क बुक. ओके, तो ये हो गया आपका मे, कैन और कुड को हम कैसे यूज करें इन द फॉर्म ऑफ परमिशन. एडवाइज, इफ यू वांट टू गिव एडवाइस, शुड एंड ऑट टू. वन थिंग, एक ट्रिक है यहाँ पर कि हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट शुड एंड ऑट टू. ऑट टू जब आप कहते हैं तो एडवाइस तो है बट ये पब्लिक एडवाइस के रूप में होता है. किस एडवाइस के रूप में है? पब्लिक एडवाइस. ओके, और जो शुड है वो आपका पर्सनल एडवाइस है. ऐसे आप इसे याद रख पाएंगे. ये बहुत ही, आई हैव ब्रॉट इट फ्रॉम आफ्टर लॉट्स ऑफ सर्च ऑन द क्वेश्चंस, देन आई ब्रॉट दिस आंसर दैट ought to जो है वो पब्लिक के लिए है, ड्यूटीज़ पब्लिक ड्यूटीज़ के लिए, शुड जो है वो पर्सनल एडवाइस के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, हर एक इंसान को मास्क प्रॉपर पहनना चाहिए. तो ये पब्लिक होगी, आपका एक पर्सन के लिए हो गया, हर पर्सन टू पर्सन. देयर ought टू बी मोर हॉस्पिटल, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए. तो हॉस्पिटल क्या हो जाता है? पब्लिक पे आता है. तो यहाँ पर एडवाइस ये भी है बट इन द फॉर्म ऑफ, ये पब्लिक के लिए है और दैट इज़ फॉर द पर्सनल. ओके, ऑब्लिगेशन, अब आप ये कहेंगे मैम वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, ये भी पब्लिक है बट ये पर्सन के रूप में आ रहा है. ओके, और ये हॉस्पिटल्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग्स टाइप हैं. ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ये सारे, नेशन हो गया, तो इन जैसे फ्लैग का रेस्पेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट हो गया, तो ओवर देयर वी यूज़ ऑट टू. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वी यूज़ लाइक मस्ट है, हैव टू है, यहाँ आपको करना ही करना, आपका तो ऑप्शन नहीं है. मस्ट है, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. ओके, और हैव टू में क्या है, आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वी हैव टू गो ना, हमें जाना ही होगा और वी विल बी लेट, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे. ओके, यू मस्ट लर्न योर लेसन, आपकी जिम्मेदारी है, आपका लेसन है, आपको लर्न करना है. ओके, तो जब भी ऐसी बात होती है कि इट इज़ अप टू यू ओनली, तो देन वी हैव टू यूज़ मस्ट.
और हैव टू ये है कि आप पर कोई दूसरा फोर्स कर रहा है कि भाई ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो आपका दिस इज हैव टू। पॉसिबिलिटीज़ के लिए माइट, मे, खुड, कैन होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ के लिए गलत ठहराऊंगी, जो भी ये जो लिखा हुआ है इसमें, कि जो कैन है वो हमेशा एबिलिटी दिखाता है और कुड भी एबिलिटी दिखाता है। देखो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल सही सेट है, लेकिन यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज़ हुआ है वो आई विल नॉट से इट इज़ राइट। यू कैन इजिली सॉल्व दिस सम, ये आपकी एबिलिटी है कि आप सॉल्व को इजिली सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यू शी कुड हैव कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आ सकती थी। ओके, तो ये सारी पास्ट की चीज़ें हैं और ये पास्ट की एबिलिटीज़ हैं। कैन और कुड में हमेशा पास्ट की एबिलिटीज़ आती हैं और पॉसिबल एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी या फिर एबिलिटी आती है। ठीक है, मे आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है, मैं इसके लिए आपको कहूँगी कि आप इसी से लर्न करें। मे आपका पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। माइट पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए और मे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, नाउ इट लुक्स नाइस, ये अच्छा लगता है, लेकिन ये कॉस्टली भी हो सकता है। इट मतलब पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट मे स्टडी टुमारो, आई मे स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ूंगी। अब कल पढ़ूंगी नहीं पता, पॉसिबिलिटी है बस। ओके, सो जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ मे और माइट लगा देंगे आप। पास्ट की होगी तो माइट और प्रेजेंट की होगी तो मे। वन, अब देखो, शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुड। ठीक है। यू डैश वियर योर मास्क बिफोर यू गो आउट फॉर शॉपिंग, यू क्या होगा बताइए आंसर इसका, बहुत इजी है आंसर, यू मस्ट। नेक्स्ट है आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय द वीकेंड, आई हैव टू, कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा प्रोजेक्ट फिनिश। माई मदर स्विम वेल वैन शी वॉज यंग, बताइए जब वो यंग थी, अच्छी स्विम कर सकती थी, तो कुड आएगा। यू डैश स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, यू हॉस्पिटल में लाउड बोलना चाहिए, मस्ट नॉट या शुड नॉट, शुड नॉट, एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है। डैश यू आस्क हिम टू हेल्प यू, आपने उसे हेल्प के लिए पूछा, तो मोर पोलाइट, गुड। आई हैवंट डिसाइड येट, आई डैश, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मीन्स नॉट श्योर, माइट टेक साइंस इन क्लास 9th। चलिए, ओके, डन इट इज। Imagine you are the principal of your school. What guidelines would you like to issue for the safety of your students and staff? Write down in the space given below. Use models of obligation, advice and suggestion. यानी आप should का, must का, आप have का, इनका have to का और should का, ought का, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करिए। पहला है जैसे you should maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. You must wear your mask. You should wash your hands after eating food, before eating food. You should not touch anybody in the class. You ought not to speak anywhere in the school. You should wear a face mask, ये हम पहले भी कह चुके हैं, must भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस। You should not share the lunch between your friends, among your friends. ओके, फाइन, ये अमंग योर फ्रेंड्स आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए बिटवीन आता है 2 लोगों के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा वर्कशीट। और माय डियर स्टूडेंट, कोविड चल रहा है तो प्लीज़ कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ओके, सो अगर वर्कशीट पसंद आई, आपको सॉल्व करने में समझ में आया और मॉडल्स का क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।